Hello everyone. We are doing chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. This is the last video of the chapter, class 12th, Biology. In this video, we are going to cover the topics translation, regulation of gene expression, and in this regulation, we will do lac operon. What is translation? It is a process of formation of protein from messenger RNA. What are the things required for this process? We need ribosomes first. Second, we need transfer RNA. Third, we need messenger RNA. And fourth, we need an enzyme, peptidyl transferase, which help in the formation of peptide bonds between amino acids. Let us start with ribosomes. See the diagram. It has got two subunits. एक large subunit है, एक small subunit है. Second, it has four sites. First site क्या है? One for the attachment of messenger RNA. It is present on small subunit. Small subunit के पास आकर messenger RNA attach होता है. And there are three sites on large subunit. These are P site, A site and E site. P site क्या है? Peptidyl site. Hold chain of amino acid. A site, aminoacyl transfer RNA site, जहां पर amino acid with transfer RNA आके attach होता है. And third, E site, which is a final exit site. Transfer RNA. It is a clover leaf shape. And we start from the 3' end. इसका structure 3' end पर देखिए point number 1 लिखा हुआ है. एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट. ये वो साइट है जहां पर एमिनो एसिड आकर अटैच होता है. और इसके ऑपोजिट साइट को कहते हैं मैसेंजर आरएनए रिकॉग्निशन साइट और एंटीकोडॉन साइट. व्हाट इज दिस? सपोज मिथ्योनिन एक एमिनो एसिड है जो 3' एंड पर आकर अटैच हो गया है. मिथ्योनिन का कोडॉन AUG मैसेंजर आरएनए के पास है. ओके तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडॉन साइट है एंड दिस एंटीकोडॉन इज UAC which will recognize AUG in the messenger RNA. So that's why the name given messenger RNA recognition site और एंटीकोडॉन साइट. थर्ड नंबर पर देखिए इट इज एंजाइम साइट. यहां वो एंजाइम आकर अटैच होता है जो एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से ज्वाइन करने में हेल्प करता है. फोर्थ साइट राइबोसोम साइट है. ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से अटैच करने के लिए इस साइट का यूज करता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. नाउ कम टू मैसेंजर आरएनए. See the structure of messenger RNA, see the diagram. We are starting from cap, left hand side 5' end. What is cap? It is methyl guanosine triphosphate. And on the 3' end, at the end, it is poly A tail, which is adenylate residues. And in the center, blue color से जो shade किया गया है, it is a coding sequence. कोडिंग सीक्वेंस का वन साइड पर स्टार्ट कोडॉन होता है AUG एंड ऑन द अदर साइड इट हैज गॉट द स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन में UAA, UAG, UGA इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर इज वन मोर थिंग प्रेजेंट इन द मैसेंजर RNA. इट हैज गॉट द एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज UTR. वो 5' एंड पर भी है और 3' एंड पर भी है. ओके जो UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर द स्टार्ट कोडॉन जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं एंड 3' एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन जो रेड कलर से दिखाए गए हैं. एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर RNA. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ट्रांसलेशन प्रोसेस. It is a process of polymerization of amino acids to form polypeptide. Amino acid की chain बनना है. One amino acid will join with another amino acid by peptide bond. So that's why it is called polypeptide.
और इसका एमिनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स इन मैसेंजर आरएनए। ये प्रोसेस होता कहाँ है? इट टेक प्लेस इन द राइबोसोम। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड ऑल्सो 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। And one more important thing about ribosome is ribosome also act as catalyst. Catalyst का भी काम करते हैं ये। किस लिए? For the formation of peptide bond, क्योंकि they have got the peptidyl transferase enzyme which is present in large subunit of ribosomes, and they are also called as ribozyme. There is one more term, polyribosomes, a group of ribosome एसोसिएटेड विद अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे अगर राइबोसोम अटैच हैं इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस: फर्स्ट, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए; सेकेंड, इनिशिएशन; थर्ड, elongation; and fourth is termination. Start with charging of transfer RNA. It is also called as aminoacylation. See the diagram जो ऊपर बना हुआ है, रे डायग्राम। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एमिनो एसिड प्लस एटीपी, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच हैं इसके साथ, प्लस एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है। ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2 पर देखिए, एमिनो एसिड एएमपी, एएमपी इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इस फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी यूटिलाइज होगी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। सो 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए, खत्म हो गए, यूटिलाइज हो गए, एंड 1 फॉस्फेट इज अटैच विद द एडिनोसिन एंड फॉर्मिंग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आफ्टर दिस ट्रांसफर आरएनए पिक्चर में आएगा, एएमपी रिलीज हो जाएगा, एंड कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गया? थर्ड पॉइंट पर देखिए, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम रिलीज हो जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट? एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, एंड दिस इज रेडी टू गो टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दिस कैन बी सीन थ्रू दिस डायग्राम ऑल्सो। चार्जिंग हो रहा है यहां पर भी। एंजाइम देखिए, पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है एंजाइम एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम है। यहां पर एमिनो एसिड और एटीपी दोनों इसके पास आ रहे हैं कंबाइन करने के लिए। जब ये कंबाइन कर जाते हैं तो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गया? एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। पॉइंट नंबर 2। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3। यहां पर ट्रांसफर आरएनए एंटर करता है और एएमपी रिलीज हो जाता है। ट्रांसफर आरएनए विल बाइंड विद द एमिनो एसिड, एंड कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? ए एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाउ एंजाइम विल रिमूव, ये एंजाइम निकल गया है बाहर, और क्या रह गया हमारे पास? एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ओके, सेकेंड स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए आप पॉइंट नंबर 1 पर देखिए, जहां पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, इट इज अ स्मॉल सब यूनिट, एंड पॉइंट नंबर 2 पर मैसेंजर आरएनए है जो लिखा हुआ है। इन दिस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू मैसेंजर आरएनए। कौन से पॉइंट पर बाइंड करती है ये? एट द स्टार्ट कोडॉन AUG। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ ज्वाइन कर लिया है, इसके बाद लार्ज सब यूनिट आती है, वो भी इसके साथ ज्वाइन कर जाती है स्मॉल सब यूनिट के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यू कैन सी द डायग्राम। देयर इज लार्ज सब यूनिट, देयर इज स्मॉल सब यूनिट, देयर इज मैसेंजर आरएनए। एज यू नो, लार्ज सब यूनिट के पास 2 साइट हैं, ए साइट एंड पी साइट। जो इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए है, कौन से वाला है? जो मिथ्योनिन लेकर आएगा। द इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए विच कैरीज मिथ्योनिन, ये कौन सी साइट पर आकर बाइंड करता है राइबोसोम पर? पी साइट पर। और इसका एंटीकोडॉन क्या है?
UAC, और कौन से कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा? AUG, विच इज प्रेजेंट इन द मैसेंजर RNA. Okay, so you can see the diagram number 2. ट्रांसफर RNA है, मिथ्योनिन के साथ आया हुआ है, P पॉइंट पर, P साइट पर अटैच हो गया है. एंटी कोडॉन है UAC एंड कोडॉन फॉर दिस इज AUG. You can see this in this diagram also. There is a AUG codon, UAC anticodon, P site पर transfer RNA is there with the methionine. Okay. Next, elongation. Second amino acyl transfer RNA. अब सेकेंड amino acyl transfer RNA आएगा जो कहाँ बाइंड करेगा? A साइट पर ऑफ द राइबोसोम. और यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड आ रहा है ट्रांसफर RNA के साथ? थ्रियोनिन, THR. and इसका एंटीकोडॉन, its anticodon binds to the second codon on the messenger RNA. इसका एंटीकोडॉन थ्रियोनिन का क्या है? UGU, and it is binding with the codon ACA. ये सेकेंड कोडॉन है of messenger RNA. Okay, and after this point number 3 देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, there is a peptide bond formation between methionine and threonine. दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा by the enzyme peptidyl transferase. Okay, after this what happened? First amino acid and its transfer RNA are broken. फर्स्ट एमिनो एसिड कौन सा था? मिथ्योनिन, और उसका ट्रांसफर RNA दोनों में ब्रेकेज हो गया है. दिस ट्रांसफर RNA इज रिमूव्ड फ्रॉम P साइट टू E साइट. देख लीजिए UAC जो ट्रांसफर RNA के पास एंटीकोडॉन था वो अब E साइट पर आ गया है. ओके, और जो A साइट पर था थ्रियोनिन के साथ वो P साइट पर शिफ्ट कर गया है. क्लियर है ये? सो this transfer RNA is removed from P site and second transfer RNA from A site is pulled to P site along with messenger RNA, and this is called translocation. अब इसके पास A site फिर से फ्री हो गया. A site पर थर्ड एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA आ रहा है. यहां पर कौन सा है? हिस्टिडीन. इसका एंटीकोडॉन कौन सा है? GUA and codon is CAU. So like this the process keeps on happening. Chain is forming, chain of amino acid will form, polypeptide chain will form, and protein is formed. After this, termination. What happened? जैसे ही stop codon आता है, stop codon है UAA, इस codon पर release factor आकर bind कर जाता है. Release factor binds to the stop codon and translation terminate हो जाता है. जब ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो गया तो पॉलीपेप्टाइड एंड ट्रांसफर RNA रिलीज्ड फ्रॉम राइबोसोम. राइबोसोम से रिलीज हो गए दोनों, एंड ऑल्सो राइबोसोम डिसोसिएट हो जाता है स्मॉल सब यूनिट और बिग सब यूनिट में. सो दैट्स ऑल अबाउट द टर्मिनेशन प्रोसेस. कम टू द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड. 4 लेवल पर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है. फर्स्ट लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जब DNA से हेट्रोजीनियस RNA बन रहा है. सेकेंड, प्रोसेसिंग लेवल, व्हेन हेट्रोजीनियस RNA इज फॉर्मिंग मैसेंजर RNA बाय स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग. थर्ड, ट्रांसपोर्ट लेवल, जब मैसेंजर RNA इज मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. एंड फोर्थ, ट्रांसलेशनल लेवल, व्हेन द मैसेंजर RNA इज फॉर्मिंग polypeptide chain. Who will regulate this gene expression? The metabolic, physiological and environmental conditions, they regulate the gene expression. For example, beta galactosidase example है E. coli में. ये एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक कर देता है into glucose and galactose, and in the absence of lactose, अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा. तो रेगुलेट हो गया, कंट्रोल हो गया. सेकेंड, द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट आर अ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स.
Before going into the proper regulation, now see two more terms, induction and repression. What is induction? If a substrate is added to a growth medium of bacteria, यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, उसमें हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, तो क्या होगा? A set of gene is switched on. जीन स्विच ऑन हो गए. क्यों? क्योंकि इस सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करना है. It is called as induction. Second, when a metabolite, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट, is added, अगर प्रोडक्ट ही ऐड कर दें तो क्या होगा? The genes to produce it are turned off. तो जीन जो इसको प्रोडक्ट को बना रहे थे वो टर्न ऑफ हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेशन. Come to operon. What is operon? Each metabolic reaction is controlled by a set of genes. जितनी भी metabolic reactions हैं वो कुछ genes उनको कंट्रोल करते हैं, and all the genes regulating a metabolic reaction they constitute a operon. जैसे कि एग्जाम्पल है लैक ओपरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन, अरा ओपरॉन, हिज ओपरॉन, वेल ओपरॉन, एक्सेट्रा. लेट अस स्टार्ट विद लैक ओपरॉन. लैक ओपरॉन इज अ ओपरॉन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला ओपरॉन है ये, और इट इज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनोड. लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपरॉन. आप डायग्राम देखिए इसका. First, a regulatory gene or inhibitory gene, I is present, which code for repressor protein. ये ऐसा मैसेंजर RNA बनाएगी जो repressor protein बनाएगा. There are 3 structural genes. See the diagram, Z, Y, A. There is an operator gene, O, and there is a promoter gene also. Okay. देखिए स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं. जेड जीन क्या बनाता है? इट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. वाई जीन कोड फॉर परमिएज, इट इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स. परमिएबिलिटी बढ़ा देता है सेल की लैक्टोज के लिए. ए जीन, इट कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज. Now, what happens in the absence of inducer? अगर इंड्यूसर नहीं है तो, अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? ऑपरॉन जीन ऑफ हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ. वाई? देखिए डायग्राम देखिए, रेगुलेटरी जीन है, वो एक मैसेंजर आरएनए बना रहा है, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए. ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, एंड दिस प्रोटीन will bind to operator. See the diagram. नीचे देखिए यहाँ पर रिप्रेसर है प्रोटीन, वो बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से. ऑपरेटर ब्लॉक हो गया. नाउ आरएनए पॉलीमरेज कैनॉट कंबाइन विद द प्रमोटर, कैनॉट मूव टू द जेड जीन, वाई जीन और ए जीन. ओके, सो हियर द लैक operon is off. Operon is off, not working. But what happened when lactose is added? अगर लैक्टोज को डाल दें तो क्या होगा? नीचे का डायग्राम देखिए, यहां पर जो प्रोटीन बना था रिप्रेसर प्रोटीन से लैक्टोज बाइंड कर जाएगा. ग्रीन कलर के सर्कल में लैक्टोज है जो बाइंड कर जाएगा प्रोटीन से, और प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा. इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया. दिस इनएक्टिव रिप्रेसर जो पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है, दिस कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर. ओ से बाइंड नहीं कर सकता. ओ ओपन हो गया. आरएनए पॉलीमरेज इजीली प्रोमोटर से बाइंड करेगा और आगे मूव ऑन करेगा. जेड वाई ए. ओके, क्लियर है ये? यहां पर देखिए, आई विल रीड इट आउट. इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर व्हाट हैपन? इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड in the growth medium, the lactose is transported into the E. coli cells by the action of permease. Lactose binds with repressor protein. So, repressor protein cannot bind to operator. The operator region becomes free and induce the RNA polymerase to bind with the promoter gene. Then transcription starts. So, this is the lac operon. I gene बना रहा है repressor
मैसेंजर आरएनए, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर जीन फ्री हो जाएगा, प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर एक्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके, एंड लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाएगा. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Do the test given in the box.